we have talked about the enemy. Okay, this is written by Pearl S. Buck. You tell me, who is enemy in this chapter? Who will tell? Sir, the prisoner of war. Yes, who is enemy? Rome. Who is enemy? The prisoner of war. The prisoner of war. Because he is from America. He is from America, है ना? And for Dr. Sadao and his wife, all Americans are their enemy, and it is justifiable also. At the time of war, कहता है ना, नफरत करना बुरी बात है. Yes, it is a bad thing. We should not hate anybody. But at the time of war, it is natural. It comes automatically. अपने आप आती है, होती है, नेचुरल है. तो जब हमारे देश के खिलाफ कोई लड़ रहा है तो डेफिनेटली वी विल हेट दैट पर्सन. इट इज नेचुरल एंड इट कैन बी जस्टिफाइड. जस्टिफाइड का मतलब क्या है? हम इसे सही ठहरा सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ जनरली सच थिंग्स हैपन, ऐसी चीजें होती हैं. क्लियर? सो वी हैड स्टडीड इट. कहाँ तक ये दिस पार्ट वी हैड ऑलरेडी डन. ठीक है, हम कहाँ तक पहुंच चुके थे ये हम देखते हैं. Dr. Sadao, who is Dr. Sadao? About his father, what kind of his father was, we have discussed it also. His father wanted him to become a doctor. He wanted to become him a surgeon, and for the same purpose he sent his son to America. There he studied and he came back after 8 years. He became a scientist, he became a surgeon also. Fine. Then there was war. मैं थोड़ा सा recap बताऊं इस story का. Then there was war. This story of war, Second World War actually. And then what happened? He was not sent to the front. He was not sent with the troops. Troops means जो soldiers उनके साथ नहीं भेजा गया. There were two reasons. One, doctor was a scientist and he was perfecting a discovery of medicine. Fine, which would render the which would render the wounds clean actually, जो घाव को तुरंत ठीक कर दे. ठीक है. Second reason was general जो था, जो general था, general was ill. Okay, general was ill and he might need operation. उसको operation की जरूरत पड़ सकती थी. This was reason. Then there came Hana. भाई हाना कौन है? Who is Hana? Hana is wife of Dr. Sadao. Where he met her? He met her in America. She had gone for studies and Dr. Sadao had also gone for studies in America. Clear? Now they are happily married. They are very happy. They have two kids. छोटे छोटे दो उनके बच्चे हैं. Clear? They were standing अपने घर के सामने. जब वो खड़े थे, सामने था sea, समंदर था. Okay, prisoner of war हम कहेंगे. He washed ashore to the doorstep. ये बीच है यहाँ पे. They came and they saw him actually. मैं थोड़ा सा इसको आगे लेके चलूंगा स्टोरी को. So students here, that prisoner of war was brought to the house of Dr. Sadao. Okay, and he was kept in Dr. Sadao's father's room, which had not been opened. डॉक्टर सदाव के फादर का रूम जो है उनकी डेथ के बाद कभी खुला नहीं था. सब कुछ उसमें क्या था? एवरीथिंग वाज देयर, जो कि उसके लिए था, उनके पिताजी के लिए था. सब कुछ जैपनीज था. ठीक है. तो लेके आए तो हाना बोलती है कि ही इज सो डर्टी. तो उसने कहा कि ये ही हैड बेटर टू बी वॉश्ड. वॉश्ड मतलब उसको क्लीन करना पड़ेगा. इफ यू विल फैच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम. किसने कहा? डॉक्टर सदाव ने कहा कि अगर तुम पानी ले आओ तो मैं इसको क्लीन कर दूंगा. तो देन शी सेड आई कैन नॉट बेयर यू टू टच हिम. मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती तुम इसको टच करो. वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स इफ ही इज हियर, that to tell the students he is here. I will tell Yumi now. She can leave the children for a few minutes and she can wash him actually. अब ये यूमी कौन आ गई? ये यूमी है अटेंडेंट जो उनके किड्स को, बच्चों को संभालती है. ठीक है. तो हाना कहती है, हाना said to her husband कि तुम्हें इसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है. आई विल कॉल यूमी और वो बच्चों को छोड़ के थोड़ी देर के लिए इसको संभाल लेगी. ठीक है.
सदाव कंसिडर्ड अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए सोचा उसने, फिर कहा लेट इट बी सो, ठीक है, ये अग्रीड, यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स। अब उनके घर में जो डोमेस्टिक स्टाफ था वो कौन कौन थे और क्या था, कौन था वहां पे? एक तो यूमी थी, है ना, एक कुक था और एक था गार्डनर, है ना। अब भाई उनका गार्डन है तो गार्डनर को संभालने के लिए भी एक आदमी चाहिए, तो कुक था और गार्डनर था, ये उनका स्टाफ था। तो उसने कहा कि तुम यूमी को बताओ, मैं बाकी लोगों को बता देता हूँ। बट द अटर पैलर ऑफ द मैन्स अनकॉन्शियस फेस मूव्ड हिम फर्स्ट। अटर पैलर, पैलर मतलब चेहरा जो पीला सा पड़ गया था उसका, क्योंकि उसको चोट लगी हुई थी, उसको टॉर्चर किया गया था और अनकॉन्शियस था, उसको थोड़ा सा इमोशनल सा कर दिया डॉक्टर को। और डॉक्टर ने क्या किया, उसकी पल्स चेक की। फर्स्ट स्टूप टू फील द पल्स, स्टूप होता है झुकना, झुक के वो उसकी पल्स चेक करता है। इट वाज फेंट, फेंट मतलब धीमी थी, बट इट वाज देयर। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन्स कोल्ड ब्रेस्ट, छाती चेक करता है नहीं, हार्ट चेक करता है। द हार्ट टू वाज येट अलाइव, यानी दिल की धड़कन भी चल रही थी, मींस दैट मैन वाज अलाइव। ही विल डाई अनलेस ही इज ऑपरेटेड ऑन, सदाव सेड कंसीडरिंग। थोड़ा सोचते हुए कहता है कि अगर इसको मैंने ऑपरेट नहीं किया तो ये मर जाएगा। द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे। फिर आगे कहता है सोचते हुए, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये आदमी नहीं मरेगा? क्यों कह रहा है वो ऐसा? क्योंकि वो कंफ्यूज्ड है। अब एज अ जैपनीज तो ये सोचेगा कि दैट पर्सन शुड डाई, फाइन, इसलिए वो एज अ जैपनीज इज थिंकिंग कि विल दैट पर्सन नॉट डाई, ये मरेगा नहीं, ही मस्ट डाई। बट एज अ डॉक्टर ही थिंक्स दैट इफ आई डू नॉट ऑपरेट दिस पर्सन ही विल श्योरली डाई, ये जरूर मर जाएगा। हाना क्राइड आउट इन फियर, डोंट ट्राई टू सेव हिम, व्हाट इफ ही शुड लिव। और हाना कहती नहीं, इसको बचाने की कोशिश मत करो, ठीक है, अगर जिंदा हो गया तो, अगर ये बच गया तो सदाव कहता है, लेकिन अगर ये मर गया तो, व्हाट इफ ही शुड डाई, सदाव रिप्लाइड। अभी दोनों की कन्वर्सेशन क्या, कंफ्यूज्ड है। वो खुद कहता है कि दिस पर्सन शुड डाई एंड देन ही हिमसेल्फ सेज दैट आई शुड ऑपरेट ऑन हिम। हाना सेज कि डोंट ट्राई टू सेव हिम। तो भाई डोंट ट्राई टू सेव हिम आप कहते हो तो घर पे क्यों लेके आए, किसने कहा था, पड़ा तो ये वहीं रहता, वहीं मर जाता। ये हमेशा, ये पता है क्या पता, इससे क्या पता चलता है कि इन अ पर्सन्स हार्ट बोथ देयर इज काइंडनेस एंड हेट्रेड, लव एंड हेट दोनों रहती है। तो उससे अंदर का जो अंतर्मन, उसकी कंसियंस होती है, वो उसे लड़ती रहती है, उसको बताती रहती है कि देखो ये तुम गलत कर रहे हो, दिस इज रॉन्ग, ये सही नहीं है। तो वो बताती रहती है, लेकिन उसके अंदर की जो बुराई है वो उसको कहते नहीं, ये काम मत कर, डोंट डू दिस। ठीक है, एक भाई है, भाई की मदद करनी है, तो क्या होता है, उसके अंदर का जो ब्रदर है, अच्छा आदमी, वो कहता है ही इज माय ब्रदर, आई शुड हेल्प हिम, उसकी मदद करूंगा मैं। लेकिन उसके अंदर की जो सेल्फिशनेस, उसको क्या कहते हैं, नहीं यार छोड़, कब तक मदद करेगा। तो यही दोनों के बीच की एक कंफ्यूजन है, दे बोथ आर इन अ फिक्स, और दोनों ही उसमें परेशानी में है, लेकिन क्या करें। अब इसको सॉल्व तो वो करेंगे। अब इसमें से एक चीज ओवरकम कर जाएगी। ओवरकम क्या होता है, जो एक चीज को दबा के ऊपर आ जाए तो हम इसको बोलेंगे ओवरकम करना। या तो उसकी जो काइंडनेस है वो उसके अंदर की हेट को मार देगी और वो उसको ऑपरेट करेगा, दया जीत जाएगी, या उसकी हेट जीत जाएगी और वो उस आदमी को ऑपरेट नहीं करेगा। दो ही चीजें हो सकती है, लेकिन यहाँ देखते हैं, अब डिपेंड करता है कौन सी चीज आपके अंदर ज्यादा है। तो अब देखते हैं फिर क्या हुआ। वो कहता है कि अगर बच गया तो, he stood gazing down on the motionless man. The man must have been, the man must have extraordinary vitality. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है जो असामान्य हो, वाइटलिटी, और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ। उस इंसान के अंदर बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइटलिटी का मतलब है रेजिस्टेंस पावर थी, अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग है ये बंदा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से स्ट्रॉन्ग है। कई बार बहुत ही मेजर ऑपरेशन एक आदमी सरवाइव कर जाता है ना। कई बार बहुत ज्यादा चोट लगने के बाद में इंसान बच जाता, हम कहते हैं भाई इस आदमी में दम बहुत ज्यादा था, हिम्मत बहुत ज्यादा थी। तो यही डॉक्टर कहना चाहता है
कि इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाइटलिटी है, अदरवाइज ये मर जाता अभी तक. बट देन ही वॉज वेरी यंग, परहैप्स नॉट येट 25, 25 साल का भी नहीं था शायद, वो बहुत यंग था. ही वॉज अ सोल्जर. हाना ने कहा यू मीन डाई फ्रॉम ऑपरेशन. डॉक्टर ने कहा ना कि अगर ये मर गया तो हाना कहती है मतलब इसका मतलब तुम कहना चाहते हो कि ऑपरेशन से ऑपरेशन से मर जाएगा ये. तो वो कहता है यस, ये भी हो सकता है, यानी ऑपरेशन में भी ये मर सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मरेगा. वैसे तो ये मरेगा ही, ऑपरेशन से भी मर सकता है. लेकिन क्या डॉक्टर उसको मरने देगा? डॉक्टर ईमानदारी से कोशिश करेगा उसको बचाने. हाना कंसिडर्ड दिस डाउटफुली. लेकिन हाना को डाउट हुआ इस बात पे जब उसके हस्बैंड ने कहा कि ये मर जाएगा. हाना ने पूछा ऑपरेशन ऑपरेशन से मर जाएगा? उसने कहा यस. हाना को डाउट हुआ. क्यों हुआ? क्योंकि हाना को अपने हस्बैंड में विश्वास था. शी हैड फेथ इन हर हस्बैंड, कि उसके अंदर जो क्वालिटी है, उसके अंदर का जो टैलेंट है, उसके अंदर की जो स्किल है डॉक्टर की, वो इतनी है कि वो किसी भी पेशेंट को बचा सकता है. तो उसको अपने हस्बैंड पे विश्वास है. When she did not answer, Sadao turned away. At any rate, something must be done with him, he said. And first he must be washed. सबसे पहले तो इसको clean करना होगा. He went quickly out of the room and Hannah came behind him. She did not wish to be left alone with the white man. वो रुकना नहीं चाहती थी उस white man के पास में. He was the first she had seen since she left America. अमेरिका छोड़ने के बाद ये पहला आदमी था जो उसके कांटेक्ट में आया था, white person. And now he seemed to have nothing to do with those who she had known there. और वो कहते, और अब उसको उन लोगों से कोई मतलब नहीं था हाना को. किन से? जो अमेरिकन से वो मिली थी. जब अमेरिका में वो थी तो उनसे उसका कोई लिंक नहीं था, कोई मतलब नहीं था. ठीक है. और ये आदमी हियर, ही वॉज हर एनिमी. ये आदमी एनिमी था. अ मैनेस, एक समस्या, प्रॉब्लम था. लिविंग और डेड, चाहे वो जिंदा रहे या वो बचे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन उसके लिए वो एक क्या था, एक एक मैनेस, यानी कि समस्या, परेशानी, एक एनिमी, दुश्मन था. इस लाइन को नोट करके लिखो अलग से, इस पे क्वेश्चन आता है. ही वॉज एनिमी, अ menace, लिविंग और डेड. और एक ये लाइन ऊपर जो है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइटलिटी, इसको भी अंडरलाइन कर लो, अंडरलाइन करो अपने बुक के अंदर. ठीक है. शी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी. यूमी को बुलाया, यूमी. बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस. बच्चों ने उसकी आवाज सुनी. तो शी हैड टू गो इन फॉर अ मोमेंट एंड स्माइल एट देम एंड with the baby play with the baby boy, now nearly 3 months old. है ना. 3 महीने का बेबी था जो उसका बेबी था, वो तकरीबन 3 months का बेबी. Over the baby's soft black hair, she motioned with her mouth, Yumi, come with me. है ना. बच्ची को संभाला और यूमी को बुलाया उसने. I put the baby to bed, Yumi replied. He is ready. यानी मैं उसको सुला देती हूँ, वो सोने के लिए तैयार है. She went with Yumi into the bedroom next to nursery and stood with the boy in her arms while Yumi spread the sleeping quilts. बिस्तर लगाया on the floor and laid the baby between them. तो क्या हुआ, बेबी को लिटा दिया, सुला दिया यूमी ने. अब यूमी को वो बुलाने के लिए आई थी. किस लिए बुलाने के लिए आई थी? ताकि वो क्या करे, उसकी बॉडी को वॉश किया जा सके, उसको क्लीन किया जा सके प्रिजनर को. द मास्टर ऑट नॉट, सॉरी. Then Hannah led the way quickly and softly to the kitchen. The two servants were frightened at what their master had just told. अब जब किचन में आई यूमी पानी लेने के लिए, तो जो दो सर्वेंट और थे, एक कुक था और एक गार्डनर था, दोनों के दोनों डरे हुए थे, फ्राइटेंड थे. एट व्हाट देयर मास्टर टोल्ड, यानी कि डॉक्टर सदाव ने उनको बताया आके क्या करने वाले हैं, तो दोनों डरे हुए थे. द ओल्ड गार्डनर, जो बूढ़ा गार्डनर था, who was also a house servant, सर्वेंट भी था, pulled the few hairs on his upper lip, मतलब थोड़ा सा एक्सप्रेशन देता है डिसलाइक का, और कहता है यूमी उसे, हाना से उसने कहा, किसने, गार्डनर ने कहा, द मास्टर ऑट नॉट टू हील द वुंड ऑफ दिस व्हाइट मैन. हील होता है घाव भरना, कि हमारे मास्टर को, मालिक को, इस आदमी को, इस व्हाइट आदमी के घाव को नहीं भरना चाहिए, यानी इसका ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए. ही सेड ब्लंटली टू हाना, बिल्कुल ब्लंटली, रूखे, प्यार से नहीं, आराम से नहीं, रूखे तरीके से बोल दिया कि नहीं, इसको बिल्कुल नहीं बचाना चाहिए. द व्हाइट मैन ऑट टू डाई,
ये गोरा आदमी मरना ही चाहिए। फर्स्ट ही वाज शॉट, पहले इसको गोली लगी। देन द सी कॉट हिम, फिर इसको सी ने पकड़ लिया। एंड वुंडेड हिम विद द रॉक्स, फिर समंदर ने क्या किया, अपनी नुकीली रॉक से इसको घायल किया। इफ द मास्टर हील्स व्हाट द गन डिड एंड व्हाट द सी डिड, अगर हमारा मास्टर हील करेगा इसके कौन से घाव को, जो समंदर ने दिया है या गन ने दिया है, तो क्या होगा, दे विल टेक रिवेंज ऑन अस, तो वो हमसे बदला लेंगे, रिवेंज लेंगे। कौन लेंगे रिवेंज, रिवेंज कौन लेंगे, यानी गन और सी। यानी एक तरीके से ये आदमी सुपरस्टिशन की बात कर, अंधविश्वास की बात कर रहा है कि पहले इसको गोली लगी, फिर समंदर ने इसको घायल किया, और अगर जो गोली ने किया है, जो समंदर ने किया है, उसको अगर ये हम उल्टा करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे, तो वो हमसे बदला लेंगे, यानी हमारे ऊपर बुराई आ जाएगी, हमारे ऊपर कोई न कोई मुसीबत आ जाएगी, ये वो कहना चाहते हैं। तो इट इज सुपरस्टिशन सिंपली। आई विल टेल हिम व्हाट यू से, हाना रिप्लाइड courteously, हाना ने बड़े ही प्यार से, आराम से, शिष्टाचार से कहा, ठीक है मैं बता दूंगी। बट शी herself was also frightened, खुद भी डरी हुई थी। although she was not superstitious as the old man was, लेकिन वो अंधविश्वासी नहीं थी। सुपरस्टिशियस कौन होता है, अंधविश्वासी। ओल्ड मैन की तरह अंधविश्वासी नहीं थी वो, लेकिन डरी हुई थी, उसको डर कुछ और था। कुड इट नेवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी, सोच रही थी क्या दुश्मन की मदद करना अच्छी बात हो सकती है। Nevertheless, she told Yumi to fetch hot water and bring it to the room where the white man was. उसको कहा कि वो पानी लेके आए और उसको वहीं बुलाया जहां पे वो white man था। She went ahead and slid back the partitions. Partition मतलब दरवाजा। कई बार दरवाजा ऐसे खुलता है, ऐसे नहीं खुलता, ऐसे खुलता है, उसमें स्लाइडिंग डोर बोलते हैं उसको। तो पार्टीशन को उसने स्लाइड किया, दरवाजा खोला। Sada was not yet there. Yumi following. Yumi पीछे पीछे थी। Put down her wooden bucket. लकड़ी की बकेट वहीं रखी। Then she went over to the white man. When she saw him, her thick lips folded themselves into stubbornness. उसके होंठ जो थे सिकुड़ गए, stubbornness ढीठता के साथ में। कई बार मना करते हैं ना तो चेहरे से एक्सप्रेशन भी होता है, बड़ा डिसलाइक का एक्सप्रेशन दिया उसने। I have never watched a white man and I will not wash so dirty a man one now. नहीं करूंगी मैं, यानी उसने क्लियरली मना कर दिया। हाना क्राइड एट हर सीक्रेट सीवियरली, चिल्ला के बोलती है, यू विल डू व्हाट योर मास्टर कमांड्स यू, तुम वही करोगी जो तुम्हारा मालिक तुमसे कहे, करो इस काम। तो अपनी अथॉरिटी दिखाने के लिए उसने कहा। देयर वाज सो फियर्स अ लुक ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन यूमीज राउंड डल फेस, इतना फियर्स है ना, फियर्स मतलब बहुत भयानक सा रेजिस्टेंस, विरोध उसके चेहरे पे आ गया। किसके चेहरे पे आ गया, हाना के, सॉरी यूमी के चेहरे पे। दैट हाना फेल्ट अनरीजनेबली अफ्रेड, हाना भी डर गई, इतना जोर से मना किया उसने, चेहरे पे गुस्सा आ गया। किसके, यूमी के चेहरे पे, बिल्कुल मना कर दिया उसने, बिल्कुल मना कर दिया। आफ्टर ऑल, if the servant should report something that was not as it happened, हो सकता है सर्वेंट क्या कर सकता है, रिपोर्ट कर सकता है आगे। if the servant should report something that was not as it happened, मतलब डर लग गया उसको, क्योंकि वो सर्वेंट्स बाहर भी तो जाके बता सकते थे। तो उसके चेहरे पे जब उसने देखा गुस्सा कि ये तो गड़बड़ हो सकती है, तो वो कहती कि वेरी वेल ओके, शी सेड विद डिग्निटी, बड़े सम्मान से कहा, ठीक है, यू अंडरस्टैंड, वी ओनली वांट टू ब्रिंग हिम टू द सेंसेस, समझाया कि तुम केवल इतना समझो कि हम इसको केवल होश में लाना चाहते हैं, सेंसेस, एंड वी कैन टर्न हिम ओवर टू अ प्रिजनर, एज अ प्रिजनर, और फिर हम इसको एज अ प्रिजनर वापस देंगे। I will have nothing to do with that, Yumi said. I am a poor person and it's not my business. वो कहती है कि मेरे इससे कोई मतलब नहीं है, आप जो करना चाहते हो करो, मैं तो एक गरीब सी लड़की हूँ और ये मेरा काम नहीं है। Then please, Hannah said gently, बड़े आराम से कहा gently, return to your own work. जाओ तो फिर अपना काम करो। At once Yumi left the room, but this left Hannah with the white man alone. She might have been too afraid to stay had not her anger at Yumi's stubbornness now sustained her. मतलब क्या है, she might
have been too afraid, मतलब बहुत डरी हुई होती वो, अगर उसके चेहरे पे गुस्सा नहीं होता। किसकी वजह से? यूमी की स्टबर्ननेस की वजह से। स्टबर्ननेस होती है ढीठता की वजह से। यानी हाना डरी हुई थी, डर था उसके अंदर, लेकिन उसको हाना पे जब गुस्सा आ गया, तो गुस्सा आने की वजह से जो है ना, डर थोड़ा सा कम हो गया उसका, और कुछ नहीं। So Yumi left from there and she started washing the body. Who started? Who started? हाना। देखो हाना नफरत भी करती है और उसी को जो ना वो काम करना पड़ा जो नहीं करना चाहती। वो जब क्लीन करती है तो बोलती है स्टूपिड यूमी, शी मटर्ड फियर्सली। मटर्ड होता है बुदबुदाना, अपने से बात करना, खुद से ही बात कर रही है वो, मटरिंग कर रही है खुद से ही। क्या कह रही है? स्टूपिड यूमी, शी मटर्ड फियर्सली, इज दिस एनीथिंग बट अ मैन? क्या ये इंसान नहीं है, कोई और है क्या, कुछ और है क्या, ये क्या इंसान नहीं है? एंड अ वुंडेड हेल्पलेस मैन, एक घायल आदमी है जो कि हेल्पलेस है, जिसकी कोई मदद करने वाला नहीं है। इन द कन्विक्शन ऑफ हर ओन सुपीरियरिटी शी बेंट इम्पल्सिवली एंड अनटाइड द नॉटेड रग्स। रग्स मतलब उसके फटे पुराने कपड़े, अनटाई करना मतलब, नॉट मतलब गांठ सी खोलना, अनटाइड जो ना बटन खोलना एक तरीके से। एंड केप्ट द व्हाइट मैन कवर्ड, दैट केप्ट द व्हाइट मैन कवर्ड, उसके जो कपड़े हटाए उसने। व्हेन शी हैड हिज ब्रेस्ट बेयर शी डिप्ड द स्मॉल क्लीन टॉवल दैट यूमी हैड ब्रॉट इनटू द स्टीमिंग हॉट वाटर एंड वॉश्ड हिज फेस केयरफुली। है ना, उसका चेहरा, चेस्ट उसने क्या किया, उसको क्लीन किया। द मैन्स स्किन दो रफ with exposure was a fine texture of, and one must have been blonde when he was a child। और उसको क्लीन कर रही थी, उसकी स्किन बड़ी मुलायम सी, हालांकि रफ थी स्किन, एक्सपोजर की वजह से, क्योंकि वो एक्सपोजर की वजह से, जैसे हम काम करते हैं ना, हाथ हमारे रफ हो जाते हैं, एक्सपोजर की वजह से रफ हो जाते हैं, है ना। वैसे जो ना वो बड़े जो ना एक तरीके से सॉफ्ट होते हैं। तो सोचती है कि बचपन में जो है ना बड़ा गोरा ब्लॉन्ड और इसकी स्किन बड़ी नरम रही होगी, लेकिन अब तो क्योंकि वो सोल्जर है इसलिए थोड़ा सा हार्ड हो गया वो। तो शी वाज जस्ट थिंकिंग। फिर आगे क्या होता है? while she was thinking these thoughts, though not really liking the man better now that he was no longer a child, she kept on washing him until his upper body was quite clean। सोचती रही और उसको क्लीन करते रही। अपर जो हिस्सा होता है, एक तरीके से चेस्ट का जो पार्ट होता है, उसे ऊपर ऊपर का जो पार्ट था, जितना वो उसको क्लीन कर सकती थी उसने क्लीन किया। बट शी डेड नॉट टर्न हिम ओवर, हिम्मत नहीं हुई उसको टर्न करने की। क्यों? क्योंकि पता था पीठ पीछे गोली लगी हुई है, वो ये देख नहीं सकती थी। वेयर वॉज सदा, नाउ हर एंगर वॉज एबिंग, गुस्सा भी धीरे धीरे कम हो गया उसका। शी वॉज एंग्जियस अगेन एंड शी रोज, उठी। She was anxious again. She rose, wiping her hands on the wrong towel. Then, lest the man be chilled, कहीं वो आदमी ठंडा ना पड़ जाए, चिल्ड ना पड़ जाए, she pulled the quilt over him, यानी उसने उसको रजाई भी उड़ाई। फिर तो वो चोट लगी थी, उसको अनकॉन्शियस था, ऊपर से ठंड ज्यादा थी, तो उसने उसको रजाई क्विल्ट फिर से उसको कवर कर दिया। सदाव, she cried softly, हल्के से आवाज लगाती है। He had been about to come in when she called. His hand had been on the door and now he opened it। यानी जब उसने आवाज लगाई तभी जो है वो पहुंच ही रहा था, दरवाजे पे ही था, तो he came in। She saw that he had brought his surgeon's emergency bag। क्या ले आया वो? अपना बैग ले आया सर्जन वाला, जिसमें सारे सर्जरी के इक्विपमेंट्स थे। एंड दैट ही वोर हिज सर्जन्स कोट, अपना कोट भी पहन लिया जो सर्जरी करने के लिए पहनते हैं। सर्जरी के लिए जो कोट होता है वो भी उसने पहन लिया। ठीक है। यू डिसाइडेड टू ऑपरेट, शी क्राइड। उसने कहा कि तुमने डिसाइड कर लिया इसका ऑपरेशन ही करोगे? यस, ही सेड शॉर्टली। शी टर्न हिज बैक टू हर एंड अनफोल्डेड अ स्टेरिलाइज्ड टॉवल। ये स्टेरिलाइज्ड टॉवल कौन सा होता है भाई? जिसको उसने ट्रीट किया होता है, जिसको सैनिटाइज किया होता है। तो स्टेरिलाइज का मतलब यहाँ पे कहेंगे सैनिटाइज्ड टॉवल, क्योंकि ऑपरेशन में जो भी चीज यूज होगी सारी चीजें सैनिटाइज्ड होती हैं, वॉश्ड होती हैं,
वो किसी भी जर्म से फ्री होती हैं, ठीक है। अनफोल्डेड स्टेरिलाइज्ड टॉवल अपॉन द फ्लोर ऑफ द टोकोनोमा एक्लोव। ये एक तरीके से दीवार के अंदर थोड़ी सी जगह बनाई होती है, जैसे हम दीवार में जगह बनाते हैं सामान रखने के लिए, कुछ ऐसे ही इसको बोलते हैं। जैपनीज वर्ड है ये टोकोनोमा एक्लो। उसमें उसने वो बिछाया सारा का वो टॉवल, और उसमें अपने सर्जरी के इक्विपमेंट्स रखे, एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट्स आउट अपॉन इट, ठीक है। चद्दर से वो जो रग टॉवल बिछाया उसके ऊपर सारे इक्विपमेंट्स रख दिए, नीचे नहीं रखने थे क्योंकि वो गंदे हो सकते थे। फेच टॉवल्स, ही सेड, उसने कहा और टॉवल्स लेके आओ। शी वेंट ओबीडियंटली, but now anxious, but how anxious now, to the linen shelves and took out the towels. वो अंदर गई, शेल्व्स जो शेल्फ होते हैं उसमें से लिनन के टॉवल निकाले उसने। देयर ought also be old pieces of matting. उसको याद आया कि पुराने मैट पड़े हुए हैं, नीचे बिछाने वाले मैट। एक्चुअली वो जो रूम था, उस रूम का जो फ्लोर था वो बड़ा सुंदर मैट था, उसके ऊपर महंगे वाला मैट उसके ऊपर बिछा रखा था। अब उसके ऊपर उसको लिटा रखा था, तो अब ऑपरेशन होगा तो मैट खराब होगा। ये सोच के उसने सोचा कि हमारे पास पुराने मैट पड़े हैं, मैं वो ले आऊं। तो पुराने मैट उठाने के लिए चली गई, लेने के लिए चली गई, ठीक है। सो दैट द ब्लड वुड नॉट ruin द फाइन फ्लोर कवरिंग, यानी फ्लोर कवरिंग को खराब ना कर दे। शी वेंट आउट टू द बैक वरांडा, पीछे का जो बरामदा था, वेयर द गार्डनर where the gardener kept strips of matting with which to protect delicate shrubs on cold nights. ये जो मैटिंग रखी हुई थी, पीछे रखी हुई थी, गार्डनर ने रखी थी, और ये किस काम आती थी? श्रब्स यानी जड़ी बूटियां जो बो रखी थी, उन्होंने उगा रखी थी, उनको ढकने के लिए, ताकि ठंड से उनको बचाया जा सके। एंड लुक एंड टुक एन आर्मफुल ऑफ देम, यानी पीछे जो मैट थे उन मैट्स को उन्होंने क्या किया, उठाया, और वो मैट्स वो लेके वहां से। सो शी ब्रॉट दोज मैट्स, जो कि नौकर ने, गार्डनर ने पीछे रखे हुए थे। बट वेन शी वेंट बैक इन टू द रूम, उसको लेके जैसे वो अंदर आई, शी सो दिस वॉज यूजलेस। वो यूजलेस था, कोई काम के नहीं थे। क्यों? द ब्लड हैड ऑलरेडी सोक थ्रू द पैकिंग इन द मैन्स वुंड एंड हैड ruined द मैट अंडर हिम। यानी जो ब्लड था वो पहले से ही जो उसका घाव पैक कर रखा था ना, उसमें से रिस के ब्लड जो है उसने उसका जो मैट था वो पहले से ही खराब कर दिया। तो वो जो मैट लेके आई उसका कोई मतलब ही नहीं था। ओ द मैट, शी क्राइड, एकदम से चिल्लाती है, अरे मैट खराब हो गया। यस इट इज ruined, सदाव रिप्लाइड, सदाव ने कहा हाँ बिल्कुल, ruin मतलब बर्बाद हो जाना, हाँ खराब हो गया है, बर्बाद हो गया है मैट। एज दो ही डिड नॉट केयर। हेल्प मी टर्न हिम, ही कमांडेड हर। उसने उसको कहा कि मेरी मदद करो इसको, क्या करने में, इसको टर्न करने में। यानी अब वो जैसे सीधा लेटा हुआ था, वो टर्न करेंगे तभी तो ऑपरेशन हो पाएगा, ठीक है। शी obeyed him without a word and began to wash the man's back carefully. Clear? Yumi would not wash him, she said. उसको मतलब पलटा दिया, उसको वापस टर्न किया, और उसका जो बॉडी थी, पीछे की जो बैक थी, उसको भी वो क्लीन करने लगे। अब उसने कहा कि यूमी ने इसको क्लीन नहीं किया। डॉक्टर ने पूछा, डिड यू वॉश हिम देन? सदा वाज नॉट स्टॉपिंग अ मोमेंट हिज स्विफ्ट कॉन्साइज मोमेंट। काम चल रहा था, ऑपरेशन का जो उसने काम शुरू कर दिया था। यस, शी सेड। ही डिड नॉट सीम टू हियर हर। अब यूमी को पता है कि वो सुनता नहीं है। जब काम में लग जाता है डॉक्टर सदाओ, तो अपनी वाइफ की बात क्या, किसी की बात नहीं सुनता है। बट शी वॉज यूज टू हिज एब्जॉर्प्शन, लेकिन उसको आदत सी थी, यूज टू होना आदत हो जाती है। शी वॉज यूज टू हिज एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मतलब बिल्कुल लीन हो जाना, मगन हो जाना। वेन ही वॉज एट वर्क, उसको पता था कि उसके हस्बैंड जब काम में बिजी होते हैं तो किसी की नहीं सुनते हैं। शी वंडर्ड फॉर अ मोमेंट इफ इट मैटर टू हिम what was the body upon which he worked so long, as it was for the work he did so excellently. वो सोच रही थी कि पता नहीं वो बॉडी क्या क्या ट्रीट, कैसे ट्रीट करते होंगे, या इंसान की जो बॉडी है वो मैटर भी करती है कि नहीं करती उनके लिए।
बॉडी के बारे में क्या सोचते होंगे जब वो उसका ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, जिस पे वो इतना ध्यान से और इतने जो ना मगन होके वो काम करते हैं।